our next lesson, that is how to organism reproduce. And up to now, we have done different types of vegetative reproduction, in which we had done fission, budding, spore formation, fragmentation, regeneration. And next is vegetative propagation. Now question arises, what is vegetative propagation? It is also called vegetative reproduction. Vegetative propagation, it is a form of asexual reproduction, where part of the plant body such as root, stem, leaf, etc. develops into a new plant. We know that plants, they reproduce with the help of seeds, but there are certain plants which show this vegetative propagation, and they can be produced or they can grow their next generation with the help of these vegetative parts like stem, root and leaf. Now, vegetative propagation, it is of two types, natural and artificial. Natural vegetative propagation, it is very rapid and easy method of propagation or reproduction, in which the plants, some plant parts, they are used for growing next generation. For example, here is given natural method of vegetative propagation, for example, by roots. The roots of certain plants, they can grow next generation. You had already seen also sweet potato. Sweet potato आपने देखा होगा, शकरकंदी जिसको हम कहते हैं. Sweet potato, dahlia, asparagus. These are the plants whose roots are having some buds, and when these roots in their surroundings, they grow the next generation. आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट के आसपास जो है नए प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं from the roots, and that is the vegetative propagation through roots. Next is by stems. Stem क्या होता है? Aerial part of the plant is called stem, but that is not always aerial. There can be subaerial or underground. Now what are the characteristics of stem? उसको stem क्यों कहते हैं? किसी को हम root कह रहे हैं, किसी को stem कह रहे हैं. तो stem की characteristic क्या है? अब potato stem है और जो sweet potato है वो root है. We are saying that these are roots. Why? Because the characteristic of stem is the presence of nodes and internodes. आपने शुगर केन देखा होगा, शुगर केन में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर नोड्स बनी होती है, these are called nodes, और जो स्पेस है in between these two nodes, that is called internode. तो presence of this node and internode is the characteristic of stem. Now by stem आपने देखा होगा grasses. समर में क्या है, बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं हमारे लॉन्स, ब्राउन कलर की ग्रास हो जाती है, येलो की ब्राउन हो गई और ग्रीन भी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं. पर आपने देखा होगा कि उसके बाद जब रेनी सीजन आता है, रेनी आती है, अगेन these lawns they become green. Why? Because the roots of these plants that is present below the soil, they are having runners. These subaerial parts which are present under the soil, these are called runners, and in these subaerial stems the nodes are present. अब ये देखिए, ये जो है subaerial runners दिखाया मैंने यहाँ, ये roots जो है they come out from this runner. तो ये बहुत दूर तक आप एक ग्रास को निकाल के देखें, आप एक ग्रास को अगर निकाल
propagated through circles. Its stem is called circles. And now underground stem. These are all modified stems. स्टेम की मॉडिफिकेशन है। अंडरग्राउंड स्टेम में हमारे क्या क्या आ जाता है, जैसे अनियन है, टर्मरिक, जिंजर, पोटैटो, all these are stems, underground stems. They also propagated through stems. Now here you can see the potato. This is potato. Potato को देखा होगा आपने घर में भी, अगर नहीं देखा तो घर में वेजिटेबल बास्केट में आप देख लेना। पोटैटो को ध्यान से देखेंगे तो स्कार होते हैं इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी दूर पे। These scars are called eyes. और पोटैटो को हम इसी के थ्रू, these are called nodes और space between two eyes are called internode. This is called internode. Now you will see that घर में अगर हम लगाते हैं या गार्डनर भी लगाता है पोटैटो को, तो एक पोटैटो को लेके वो क्या करते हैं, स्क्वायर पीसेस काट देते हैं। लार्ज साइज के पोटैटो को लेके बहुत सारे स्क्वायर पीसेस, पर स्क्वायर पीसेस कैसे काटते हैं, वो स्क्वायर पीसेस ऐसे काटते हैं कि ये आई जो है वो स्क्वायर पीस के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद हम उसको सॉइल में लगाते हैं तो हर जो आई से जो है एक नया प्लांट ग्रो होता है। सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम। उसके बाद नेक्स्ट है बाय लीफ। लीफ से कैसे होती है, ब्रायोफिलम, पत्थर चट इसका कॉमन नेम है। ब्रायोफिलम का लीफ आपने देखा होगा ऐसे होता है। सकुलेंट है ये प्लांट। सकुलेंट प्लांट वो होते हैं जो वाटर स्टोर करते हैं और थिक लीव्स होते हैं इसके, और इसके नोचिस के ऊपर, ये नोचिस हैं, इन नोचिस के ऊपर आप देखिए, अगर आपने कभी देखा हो, अगर आपने देखा तो उसको एक लीफ को तोड़ के आप न्यूज़पेपर में या अपनी नोटबुक वगैरह में रख सकते हैं, तो थोड़े दिन के बाद आप क्या देखेंगे, इन नोचिस से व्हाइट रेड रूट्स निकल आएंगे और इनसे नए प्लांट भी ग्रो होते हैं। अगर ये लीफ जमीन के ऊपर गिर जाए, सॉइल में गिर जाए, तो वो जो है नए प्लांट्स ग्रो होते हैं, बिकॉज इन दिस नोचिस adventitious buds are present which give rise to new plant. So this is present in Bryophyllum and Begonia. So these are the different natural method of vegetative propagation. Next we are doing artificial method of vegetative propagation. Artificial method of vegetative propagation किसमें होता है? Artificial means man-made. Those plants which are difficult to grow by natural method of vegetative propagation. तो ऐसे plants को, these plants, they are grown by artificial method of vegetative propagation. अब देखिए सबसे पहले इसमें different methods हैं. These are given the different methods of artificial propagation. First of all, cuttings. So the stem cuttings of some plants that is taken. Root cuttings of some plants these are taken. Leaf cuttings they can also be used for the growth of next generation, for the development of next generation. So these first of all we will do stem cuttings. Stem cutting आपने देखा होगा रोज में, rose, sugarcane, lemon, falsa. These are the examples which shows that is stem cutting. Stem cutting क्या लेते हैं, older plant से हम जो पूरी तरह older plant होता है उससे हम 50 सेंटीमीटर to 1 मीटर, 20 सेंटीमीटर to 50 सेंटीमीटर की older branch को लेते हैं और ये ब्रांच पे नोट्स होती हैं बहुत सारी, तो इसको हम ऑब्लिकली कट करते हैं। ऑब्लिकली कट करने के बाद इसको जमीन में लगाया जाता है और उससे नया प्लांट ग्रो होता है। आपने देखा होगा गार्डनर लेके आता है, रोज कटिंग लेके आए, कलम जिसको कहते हैं हम, कलम लेके आया, रोज कटिंग, लेमन, फाल्सा, शुगरकेन, ये सारे प्लांट्स हम कटिंग से भी लगाते हैं। Artificial method of vegetative propagation.
नेक्स्ट है रूट। रूट हम टेमेरिंड इंग्लिश जो होती है और ब्लैकबेरी, these we grow by roots। होता क्या है इसमें कि we take the 5 to 7 सेंटीमीटर ऑफ रूट ऑफ these plants और इसको हॉरिजॉन्टली सॉइल के अंदर हम जो है लगा देते हैं, सॉइल में दबा देते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रूट है इससे नया प्लांट ग्रो होता है। These are called root cuttings। Now by leaf cuttings, लीफ कटिंग में बिगोनिया, पेपरोमिया, इसकी हम लीफ कटिंग लगाते हैं जो कि इसकी लीफ में डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट मोटिव्स होते हैं। तो अगर हम इसकी कट करके लगाएं तो लीफ कटिंग से भी हम नेक्स्ट जनरेशन ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं इन बिगोनिया एंड पेपरोमिया। नेक्स्ट मेथड ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। लेयरिंग हम उन प्लांट्स में करते हैं जो बुशी होते हैं। मोस्टली माउंट लेयरिंग उनमें करते हैं जो बुशी हैं। माउंट लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग, दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयरिंग। माउंट लेयरिंग उसमें करते हैं जिनके बुशी प्लांट होते हैं जैसे जैस्मिन, ग्रेप वाइन, स्ट्रॉबेरी। तो इसमें क्या करते हैं, देयर यू कैन सी द माउंट लेयरिंग। माउंट लेयरिंग में क्या है कि जो साइड की ब्रांच है उसको हम स्ट्रेच करके सॉइल के अंदर दबा देते हैं, सॉइल के अंदर डीपली दबा देते हैं। तो उससे जो है जो वीक पार्ट होता है उससे नई रूट्स निकलती हैं और उसके बाद उसको डिटैच कर देते हैं हम पेरेंट प्लांट से, ये नया प्लांट ग्रो होता है। अगर हम ऐसे नहीं करें, स्ट्रेच नहीं करें तो हम रिंग्स भी लगा सकते हैं। सॉइल के अंदर रिंग्स लगाए और एक ब्रांच को स्ट्रेच करके आप रिंग के अंदर से क्रॉस कर दीजिए, जो बेंड पार्ट है उससे नई रूट्स निकलेंगी और आफ्टर एज दिस प्लांट विल स्टार्ट ग्रोइंग इंडिपेंडेंटली वी कैन डिटैच इट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। अब ये न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो गया है। इन दिस वे नेक्स्ट जनरेशन कैन बी प्रोड्यूस इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है और किसी भी डायरेक्शन में, राइट। नेक्स्ट है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग जो होती है लेमन, गुआवा, लीची एक्सेट्रा में की ये एयर लेयरिंग है। आपने देखा होगा कि कई बार गार्डनर आता है, वो क्या करता है, जो कई प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर से एक बार उतारता है, रीबार्किंग करता है। एक बार उतारने के बाद उसको लगता है ना ये प्लांट अच्छा और हम ग्रो कर सकते हैं आगे, तो उसके ऊपर से बार उतारने के बाद उस पार्ट पे थोड़ी सी जो ड्राई ग्रास या मॉस लेके उसको पॉलीथीन में लेके और उस या कपड़े में लेके इसके ऊपर टाई कर देता है। और अब इसके ऊपर हमें कहता है कि इसको वाटरिंग करते रहना, वाटर देते रहना, ड्रॉप बाय ड्रॉप या इसमें वाटर देते रहना। कई बार हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक जो है छोटा जो स्मॉल साइज का फीचर होता है उसको लटका देते हैं, हैंग कर देते हैं और उसमें नीचे होल्ड कर देते हैं। वो ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर इस जो है लेयरिंग के ऊपर, इस जो माउंट लेयरिंग में इसमें की है गार्डनर में, इसके ऊपर गिरता है और थोड़े टाइम के बाद इसमें से रूट्स निकल जाती है। जब रूट्स निकल जाती है तो हम इसको पेरेंट प्लांट से डिटैच करके इस प्लांट को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं for growing the next generation. So in this way you will see these are the different methods, and next method of artificial propagation we are doing. What is that? That is grafting. Very important. Grafting method we will do. तो grafting में करते क्या हैं आप ये देखिए। ग्राफ्टिंग हम उन प्लांट्स में करते हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होती है? एज लाइक इन डाइकोट प्लांट।
स्टॉक है। सियोन में स्टॉक हमारा अबाउट 20 से 50 सेंटीमीटर होता है अबव द ग्राउंड। और सियोन जो है, सियोन से हम क्या करते हैं, इसके जो भी ब्रांचेज और लीफ है उसको रिमूव कर देते हैं और इन दोनों को हम पैरेलल लाने के बाद उसको टाई करते हैं अच्छे से रॉड से और इस पे वैक्स कोटिंग कर देते हैं, वैक्स लगाते हैं। क्यों लगाते हैं वैक्स? टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम infection, so that no infection take place in this cutting part. So in this way, in this zone, the next generation will grow. Grafting हम बहुत सारे ऑर्गेनिक प्लांट में, फ्रूट जो बेरिंग प्लांट्स है उनमें करते हैं, या फिर आपने देखा होगा कई बार प्लांट जो रोज है, एक ही प्लांट में हम डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं by planting these different zone। एक ब्रांच किसी और पार्ट से प्लांट से ली हमने, एक ब्रांच किसी और से, और आपने कई जगह देखा होगा अच्छे गार्डन में और बोटेनिकल गार्डन में एक ही प्लांट में कई डिफरेंट टाइप के रोजेस लगे होते हैं, तो वो ग्राफ्टिंग से ही पॉसिबल है। ठीक है, आजकल हम तीनों खाते हैं, वो भी ग्राफ्टिंग से ही प्रिपेयर की हुई है टू इम्प्रूव द वेराइटी ऑफ द प्लांट। कई प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत सारे सालों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जिसमें फ्रूट आने में, तो ऐसे प्लांट्स भी जिनके फ्रूट आने में टाइम ज़्यादा लगता है, हम क्या करते हैं कि ओल्डर प्लांट्स के ऊपर यंगर प्लांट्स को लगा देते हैं, तो यंगर प्लांट से फिर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो दिस ग्राफ्टिंग इज डन टू इम्प्रूव द वेराइटी ऑफ द प्लांट, टू गेट द फ्रूट अर्लियर, right, and to develop the disease resistant variety. But you will keep in mind that this will take place only in diploid plants, not in monopod plants. This is all about grafting. Now advantages of vegetative propagation. अब vegetative propagation के advantages क्या क्या हैं? आप देखिए advantages क्या हैं? रैपिड होती है, ये बहुत जल्दी होती है, ठीक है, इजी है, कन्वीनियंट है, राइट, एंड चीपर है, इकोनॉमिकल है, इसमें कोई ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। रैपिड, मल्टीप्लिकेशन, इजी एंड इकोनॉमिकल, राइट। सेकेंड, by the vegetative propagation you can grow those plants which are not having active seeds or which are having viable seeds। viable seeds होते हैं inactive seeds और जो next generation को grow नहीं कर सकते। ऐसे प्लांट जिनमें viable seeds होते हैं लाइक बनाना, बनाना के सीड देखे हैं कभी आपने? सेंटर में से काटिए, सेंटर में आपको ब्लैक डॉट से नजर आएंगे, These are the seeds, पर इन सीड्स से हम नेक्स्ट जनरेशन ग्रो नहीं कर सकते। तो दोज लाइक ग्रेप्स, तो कुछ प्लांट ऐसे जो वाइबल सीड्स होते हैं जिनके they can also be grown by this method, vegetative propagation। नेक्स्ट, अर्ली फ्रूटिंग के लिए या अर्ली हार्वेस्टिंग के लिए भी यूज करते हैं। जैसे पोटैटो, अभी मैंने आपको पोटैटो ट्यूबर से बताया, आपको पोटैटो ट्यूबर से हम कटिंग करके नेक्स्ट जनरेशन ग्रो करते हैं। तो होता क्या है, अगर हम पोटैटो को सीड से लगाएं, ऐसा नहीं है कि पोटैटो के सीड से नहीं होते, सीड्स होते हैं, अगर पोटैटो को सीड से लगाएं तो अबाउट 15 मंथ्स लगते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। अगर हम पोटैटो को आप वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड करते हो तो 3 मंथ्स में आपको नेक्स्ट हार्वेस्ट मिल जाती है, 3 मंथ्स में आपकी क्रॉप प्रिपेयर हो जाती है, राइट। नेक्स्ट एडवांटेजेस है कि आपकी कुछ यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, दे कैन बी मेंटेन्ड इन नेक्स्ट जनरेशन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्यों? क्योंकि इसमें आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर होते हैं प्लांट्स टू देयर पेरेंट प्लांट्स, वेरिएशन नहीं होती। तो इसका भी एडवांटेज है
some improved varieties they can also be produced. They can be also be developed by this method as like in grafting. So new varieties can be developed by this method. So these are the advantages of vegetative propagation. Now disadvantages क्या क्या है? डिसएडवांटेजेस आप देखिए, एक तो क्या होगा कि जब आप इस एक ही प्लांट को एक बार बार ग्रो करेंगे, इट विल लूज इट्स विगरनेस, इसकी जो क्वालिटी डे बाय डे डाउन होती चल जाएगी। नेक्स्ट क्या है कि कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स ऑफ डिजीज विच आर कंट्रैक्टेड इन पेरेंट प्लांट, they will be run over for many generations. Third disadvantage है कि it will produce, it can cause crowding around itself. crowding, over crowding हो जाती है, over crowding चारों तरफ एक ही तरह के plants grow हो जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्योंकि वेरिएशन इसमें नहीं होती है मोस्टली, तो क्या है, इट विल नॉट प्ले एनी रोल इन इवोल्यूशन। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हम करेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन और टिश्यू कल्चर। माइक्रो प्रोपेगेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है ये देखिए, माइक्रो प्रोपेगेशन और टिश्यू कल्चर। इसमें क्या करते हैं हम, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें बहुत एक्टिव सीड्स या एक्टिव पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते, कई बार बहुत थोड़ा सा पार्ट अवेलेबल होता है जिससे कि हमें नेक्स्ट जनरेशन डिवाइड करनी होती है। तो ऐसे केसेस में जहाँ हमें सफिशिएंट एक्टिव बर्ड्स और पार्ट्स नहीं अवेलेबल हैं, तो वो करते क्या हम, some cells of these plants, some cells or tissues of these plants or like apical meristem that is taken from these plants and can be used for growing next generation called explant. इस explant को हम artificial कल्चरिंग करते हैं इसकी कल्चरल मीडियम के लिए हम यूज करते हैं अगर मीडियम यूज करते हैं, अगर मीडियम हमें इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्गी, राइट, थिक होता है, जेली लाइक होता है। तो इसमें हम कल्चरिंग करते हैं एक्सप्लांट की, न्यूट्रिटिव एलिमेंट डालते हैं, न्यूट्रिटिव जूसेस डालते हैं लाइक कोकोनट जूस और एप्पल एक्सट्रैक्ट। और these plant cells which are present in explant, they will multiply and form a group of cells called callus। एक सिमिलर सेल का ग्रुप बन जाता है, having similar cells, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स बन जाता है, made up of similar cells, that is called callus। अब इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, इसको हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए ग्रो नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी कैलस को हम ट्रांसफर करेंगे, कैलस में हम क्या ऐड करेंगे, प्लस सम हार्मोन्स, डिफरेंशियल हार्मोन्स which causes the differentiation in this callus। डिफरेंशिएशन का मतलब है a few cells they will produce stem, few cells they will produce roots, few cells they will produce leaves, and in this way you will see a plantlet will be produced। A plantlet will be, small plantlet will be produced, and this plantlet after 4 to 5 weeks it is transferred to soil and can be used for growing the next generation। So this is called tissue culture। क्लियर, क्लोनिंग वगैरह करते हैं या जो भी है, टिश्यू कल्चर में हम आइडेंटिकल प्लांट्स हमें मिलते हैं, डिजीज फ्री होते हैं, हेल्दी एनवायरनमेंट में हम लोग करते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, एक तो बहुत छोटे
can grow next generation. Next, it requires very small space or place to grow and can be carried over this at any time throughout the year. No specific time is required. We are able to grow disease-free plantlets by this method, tissue culture. हमें disease-free resistant disease-free plantlets अवेलेबल होते हैं by this method. तो टिश्यू कल्चर जो है इसके ये एडवांटेजेस हैं. समझ आ रही है? तो दिस इज ऑल अबाउट asexual reproduction in living organisms. यहाँ तक हमारा हो गया है. थैंक्स. नेक्स्ट टाइम हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन